You want me to begin? Yeah. Yes, yes, You can. yes, brother. Oh, okay. Welcome, brother. Thank you, Brother Edwin. And I praise God for this privilege once again to bring God's word to you. And I appreciate the burden that God has given to Brother Vijay Chand to reach North India with the pure gospel. And I also thank my interpreter. Is he there? Yes, Today, brother, I'm here. Brother Saurabh. Yes, I'm here. Yeah, brother. Yesterday, we started this topic entitled Imitating Christ or Christ-likeness. कल हमने एक विषय को लेकर शुरू किया था। इस विषय का नाम इस प्रकार से है, मसीह के समान होना या मसीह का अनुसरण करना। The goal of salvation, we said, was not simply to escape hell and to go to heaven, but to be conformed into the image of God's Son, Jesus Christ. उद्धार पाने का मतलब ये नहीं है कि हम नरक से बच जाएं, लेकिन उद्धार पाने का अर्थ ये है कि हम स्वर्ग जरूर जाएं, लेकिन उसके साथ ही साथ हम मसीह के पुत्र परमेश्वर के पुत्र के समान हो जाएं। When we go to heaven, we are going to be just like the Lord Jesus Christ. जब हम स्वर्ग जाएंगे तब हमारा जो स्वरूप होगा वो ठीक मसीह के स्वरूप के अनुसार होगा। So our goal in life should be more and more like Jesus Christ. तो हमारे जीवन का जो लक्ष्य होना चाहिए वो ये हो कि हम अधिक से अधिक मसीह के समान अपने जीवन को बनाने वाले हों। We looked at Christ-like serving. हमने देखा कि मसीह किस प्रकार से मसीह ने अपनी सेवा को दिया। We also looked at Christ-like obedience. और फिर हमने देखा मसीह किस प्रकार आज्ञाकारी रहा। And we also looked at Christ-like meekness. और उसके बाद हमने देखा मसीह किस प्रकार अपने आप को दीन बनाया। Yesterday we said that we are slaves of Jesus Christ. और कल हमने ये भी कहा कि हम मसीह के दास हैं। We are no more slaves to sin, but we are now, as saved people, slaves of Jesus Christ. और हम याद रखें कि अब हम पाप की अधीनता में नहीं हैं, पाप की गुलामी में नहीं हैं, लेकिन हम छुटकारे को प्राप्त कर चुके हैं और अब हम मसीह के दास हैं। If you look at Romans 6, और अगर आप निकालें रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय, verse 18, and having been set free from sin, you became slaves of righteousness. रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 18 वचन इस प्रकार से कहता है, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। Paul calls himself and Timothy as bondservants or slaves of Jesus Christ in Philippians 1:1. पौलुस जो है वो अपने आप को और तिमोथी को इस प्रकार से स्मरण दिलाता है फिलिपियों की पत्री उसका 1 अध्याय का 1 वचन कि वो अब मसीह के दासत्व में हो गए हैं। The favorite self-description of apostles like Peter, James, and Jude, and John, besides Paul, is that they are bondservants or slaves of Jesus Christ. और पौलुस के अलावा अन्य जो प्रेरित हुए जैसे पतरस, यूहन्ना, याकूब और यहूदा, इन्होंने हमेशा अपने आप की पहचान इस बात से की कि वो मसीह के दास हुए। We are now going to look at Christ-like prayer. और आज जो विषय हम देखने जा रहे हैं वो है मसीह के जैसा प्रार्थना करना। Let's see Luke chapter 11, verses 1 through to 4. और हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय उसका 11वां अध्याय उसके पहले 4 वचन। And now it came to pass as he was praying in a certain place
when he sees that one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. So he said to them, when you pray, say, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us day by day our daily bread, and forgive us our sins, for we also forgive everyone who is indebted to us, and do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 1 से 4 में इस प्रकार से लिखा है, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। It's quite interesting to see that Christ gave priority to pray as a man on earth. और जब हम देखते हैं तो ये बहुत रुचिकर है कि जब मसीह प्रार्थना करने के विषय में सिखाते हैं तो एक मनुष्य के रूप में प्राथमिकता को देते हैं। The disciples saw Jesus praying again and again, early in the morning, throughout the night, regularly. And they said to themselves, if prayer is so important for our Lord, we also want to learn how to pray like him. And then they came to him and said, why don't you teach us to pray? और चेलों ने जब मसीह के जीवन को देखा कि मसीह निरंतर प्रार्थना करता है, मसीह सुबह भी प्रार्थना करता है, मसीह दिन के हर पहर में प्रार्थना करता है, तो जब उन्होंने इस प्रकार से मसीह के जीवन में प्रार्थना के चरित्र को देखा तो उनके मन में उत्सुकता हुई, और वो जाकर स्वामी से कहते हैं, मसीह से कहते हैं कि हे स्वामी, हे मसीह, हमें भी तू प्रार्थना करना सिखा। Have you ever realized that Jesus never taught his disciples how to preach, but he taught them how to pray? क्या आपने ध्यान दिया है कि कभी भी यीशु ने अपने चेलों को प्रचार करना नहीं सिखाया, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यीशु ने सिखाया वो है प्रार्थना कैसे करना चाहिए। We think that preaching is difficult, praying is easy, but it is not. हम सोचते हैं कि प्रचार करना बहुत कठिन बात है, लेकिन प्रार्थना करना आसान है। याद रखें, ऐसा नहीं है। We don't know how to pray according to the will of God. क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। We have to learn from the Lord Jesus Christ and from his word even how to pray. इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन से और मसीह की प्रार्थना के द्वारा ये सीखना है कि हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए। Jesus' personal prayer life is an example to us. और यीशु का जो व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन था वो हमारे लिए उदाहरण है। Let us see how Jesus prayed. आइए हम देखते हैं यीशु किस प्रकार प्रार्थना करते थे। Hebrews chapter 5 verse 7. इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 7वां वचन। Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with vehement cries and tears to him who was able to save him from death, and was heard because of his godly fear. इब्रानियों 5:7 यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। Normally, men of the age around 30 don't cry. और सामान्यतः हम देखते हैं कि एक पुरुष अगर वो 30 साल के आसपास का है
तो ऐसा एक व्यक्ति सामान्यतः रोता नहीं है। Look at Jesus Christ. He prayed with loud cries and tears, and he offered लेकिन up यहाँ पे prayers अगर हम and यीशु को देखें, supplications. लेकिन यहाँ पे अगर हम यीशु को देखें तो यीशु ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर प्रार्थना कर रहे हैं। I don't know if you have prayed like this in your life. मैं नहीं जानता कि हम में से कितने हैं जिन्होंने इस प्रकार से अपने जीवन में प्रार्थना किए होंगे। If praying like that was necessary for our Lord Jesus Christ, how much more it is necessary for you and me. अगर इस प्रकार से प्रार्थना करना हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए आवश्यक था, तो सोचें कि ये कितना जरूरी है कि हम भी इसी प्रकार से प्रार्थना करें। Let us not underestimate the importance and need for prayer. इसीलिए कभी भी प्रार्थना के इस महत्व को हम नजरअंदाज ना करें। Jesus prayed early in the morning. हम देखते हैं यीशु प्रातः भोर के समय में प्रार्थना करते थे। The book of Mark, chapter 35. मरकुस रचित सुसमाचार हम देखेंगे। Now in the morning, having risen a long while before daylight, he went out and departed to a solitary place, and there he prayed. मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 35 वचन में लिखा है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। He worked hard throughout the day, the previous day. इसके पहले का जो दिन था, मसीह उस दिन कठिन परिश्रम को करते हैं He needed rest. और उसको अब आराम की आवश्यकता थी। But you know what he did? He got up so early in the morning that it was still dark. लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यहाँ पे क्या करते हैं, वो भोर को जब सूरज निकला भी नहीं होता है और प्रातःकाल का समय होता है, उस समय तड़के उठ जाते हैं। Once there is daylight, people start coming and he will be busy. क्योंकि एक बार अगर सूर्य का प्रकाश दिख आ जाएगा तो लोग आना जाना करेंगे और फिर व्यवधान होगा। And in Mark 6, 46 and 47, after distributing 5 loaves to 5,000 men and other women, he prayed in the evening. और हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 46 और 47 वचन में, जब 5,000 पुरुषों को प्रभु ने खिला दिया, उसके बाद फिर शाम के समय में मसीही फिर से प्रार्थना करते हैं। And in Luke 6:12, he prays throughout the night. और लूका रचित सुसमाचार उसका 6 के 12 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु पूरी रात प्रार्थना में समय बिताते हैं। Now it came to pass in those days that he went out to the mountain to pray and continued all night in prayer to God. 6 के 12 में इस प्रकार से लिखा है लूका रचित सुसमाचार के, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। Has anyone prayed alone all night? क्या हम में से कभी भी किसी ने अकेले पूरी रात प्रार्थना किया है? My wife and I sometimes pray throughout the night. मैं और मेरी पत्नी कभी-कभी पूरी रात प्रार्थना करते हैं। Sleep is important, but prayer is more important. सोना जरूरी है, नींद लेना जरूरी है, लेकिन प्रार्थना करना उससे भी अधिक जरूरी है। Let us not neglect praying. इसीलिए प्रार्थना को अपने जीवन में कभी भी नजरअंदाज ना करें। We need to pray throughout the day, throughout our lives. और हमें अपने जीवन के पूरे समय में, हर समय में प्रार्थना करने की आवश्यकता है। Jesus prays in private, Luke 5:16. लूका रचित सुसमाचार उसके 5 के 16 वचन में लिखा है, यीशु एकांत में जाकर प्रार्थना करते थे। And he prays in public.
और हम देखते हैं यीशु सभाओं में भी प्रार्थना करते हैं। We should pray in private. We should also pray in public. हमें एकांत में भी प्रार्थना करना है और हमें सभाओं में भी प्रार्थना करना है। He fasted and prayed for 40 days. यीशु 40 दिन तक उपवास रहकर प्रार्थना किए। Do we pray like that? क्या हम कभी इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं? We think prayer is not necessary. हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि प्रार्थना करना बहुत जरूरी नहीं है That's why we don't pray. और इसीलिए हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। If we really know the need to pray, we will pray. और अगर हम सच में जानेंगे कि प्रार्थना क्यों जरूरी है तो हम फिर जरूर प्रार्थना करेंगे। Look at Lamentations chapter 2 verse 18. विलाप गीत की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 18 वचन, 18 and 19. Their 18 और 19 वचन। Their heart cried out to the Lord, O wall of the daughter of Zion, let tears run down like a river day and night. Give yourself to relief. Give yourself no relief. Give your eyes no rest. Arise, cry out in the night. At the beginning of the watches, pour out your heart like water before the face of the Lord. Lift your hands toward him for the life of your young children who faint from hunger at the head of every street. विलाप गीत की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 18 और 19 वचन में लिखा है, वे प्रभु की ओर तन मन से पुकारते हैं। हे सियोन की कुंवारी, अपने आंसू रात दिन नदी के समान बहाती रह, तनिक भी विश्राम न ले, न तेरी आंख की पुतली चैन ले। रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर, प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा के समान उंडेल। तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उनकी ओर फैला। We are living in dangerous days, both physically and spiritually. हम लोग जिस समय में रह रहे हैं, चाहे वो भौतिक रूप से हो, चाहे वो आत्मिक रूप से हो, बहुत कठिन समयों में जीवन बिता रहे हैं। That's why we need to pray without giving rest to our eyes or relief to ourselves and cry and shed tears and pray incessantly. और इसीलिए हमें बिना आराम किए, ना ही अपने आंखों को आराम देते हुए, ना ही अपने ध्यान को भटकाते हुए हमें निरंतर प्रार्थना में समय बिताना है, प्रार्थना करना है। But then look at verse 19. What time should we pray? और फिर विलाप गीत उसका 2 अध्याय उसके 19 वचन में लिखा है कि हमें किस समय प्रार्थना करना चाहिए। Arise, cry out in the night at the beginning of the watches. वहां पे लिखा है, रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर। What time is that? तो यहाँ पे किस समय के बारे में बताया गया है? I want you to unmute yourself and answer me. What मैं चाहता हूं कि आप में से कुछ लोग अपना माइक ऑन करें, अनम्यूट करें और उत्तर दें। मैं जो पूछ रहा हूं उसको बताएं। किस समय प्रार्थना करना चाहिए? हर एक समय पैर तक, हर समय। सूर्योदय से पहले। What time in English? Some are saying every time we should pray. Some are responding that before sun rises we should pray. So I think first one at approximate time of 12, then second one at around 3 a.m. night. Okay. Like afternoon, evening, and night, like that in the same manner, same way in the night also. Okay. Like Daniel prayed in the evening, afternoon, and morning, like that. In same way in the in between the night from 8 p.m. To morning 6 p.m. I think. Okay. Yeah. But why does Jeremiah
say in verse 19, arise, cry out in the night at the beginning of the watches. तो इस वचन के आधार पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं। Brother, unmute yourself. Brother Saurabh. Praveen brother, you carry on brother. Be ready. Saurabh brother, signal weak. Yeah. Actually, somebody muted my mic. Sorry. Okay. Yes. Thank you. Yeah. तो जो सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है वो ये है, विलाप गीत की पुस्तक 2 अध्याय के 19 वचन में, कि यहाँ पे क्यों ऐसा लिखा है कि रात के हर पहर में आरंभ में उठकर चिल्लाया कर। What does that exactly mean? At what time are we supposed to pray? इस वचन का क्या मतलब है, और यहाँ पे समय के विषय में क्या बताया गया है कि हमें किस समय प्रार्थना करनी चाहिए। At the beginning of the watches. हर पहर के आरंभ में लिखा है। When? कब? According to the calculations of the Jewish day and night, there are 4 watches per night, and each watch has 3 hours. जो यहूदी समय का अंतराल होता है, और यहूदी समय जिस प्रकार से उन लोग गिनते हैं, उसमें उस समय का जो अंतराल है वो 4 भागों में बटा हुआ होता है। You know at what time Jesus walked on the sea and came to rescue his disciples in Matthew chapter 14? मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में जो घटना लिखी है कि यीशु झील में आकर अपने चेलों को बचाते हैं, क्या आपको मालूम है कि वो घटना किस समय की है, कितने बजे की होगी? Verse तीसरा 25. पहर। Verse 25. Now when the 4th watch of the night, Jesus went to them walking on the sea. वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि जो verse, which was brother? 14:25. 14 के 25 में इस प्रकार से लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार में, और यीशु रात के चौथे पहर पर झील पर चलते हुए उनके पास आया। So we see, we read about the first watch in Lamentations 2:19 and 4th watch in Matthew 14:25. So that tells us that there are at least 4 watches per night. तो जो विलाप गीत की पुस्तक है वहां 2 के 19 में लिखा है कि रात के पहले पहर के विषय में। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 25 वचन में लिखा है चौथे पहर के विषय में। तो इन दोनों वचन के आधार पे हम ये मान सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो यहूदियों का समय है वो 4 पहर में बटा हुआ होता था। The first watch is from 6 o'clock to 9 o'clock. जो पहला पहर होता था वो 6 बजे से लेकर 9 बजे का होता था। The second watch is from 9 to 12. जो दूसरा पहर होता था वो 9 से 12 का होता था। And the third watch is from 12 to 3. तीसरा पहर 12 से 3। And the fourth watch is from 3 to 6. और चौथा पहर 3 बजे से लेकर 6 बजे का होता था। The book of Lamentations tells us to pray, get up and pray before the first watch. और जो विलाप गीत की पुस्तक है वो हमें स्मरण दिलाता है, वो हमें ये आज्ञा देता है कि जो पहला पहर है उसके पहले घंटे में हमें प्रार्थना करना चाहिए। You know what that means? We have to pray normally we go to bed thinking that everything is okay. But Jeremiah tells us it's not okay. Things are not okay. Get up. It's not time to sleep. It is time to depend on God. It is time to desperately pray. सामान्यतः ऐसा होता है कि जब हम अपने बिस्तर में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि आज का दिन अच्छा गया और सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें जो यिर्मयाह की पुस्तक में विलाप गीत
की पुस्तक में यिर्मयाह जो स्मरण दिलाता है वो ये कहता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, समय ठीक नहीं है, हमें प्रार्थना करना है, हमें सोने की आवश्यकता नहीं है, समय हमें सोने के लिए नहीं दिया गया है, लेकिन उठकर प्रार्थना करने के लिए दिया गया है। Just like Jesus prayed in the morning, at night, throughout night, in private, in public, with loud cries and tears, may we also pray just like Jesus. ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से यीशु रोकर चिल्लाकर आंसुओं के साथ सुबह तड़के शाम के समय में पूरी रात एकांत में सभाओं में अलग अलग प्रकार से प्रभु यीशु प्रार्थना करते थे, ठीक उसी प्रकार से हमें भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। Let's now look at Christ-like humility. अब हम एक और विषय देखेंगे कि मसीह के समान नम्र होना या मसीह की तरह नम्रता। Philippians 2:8, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसके 8वें वचन में लिख रहा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। And in Matthew 11:29, Jesus says, "Take my yoke upon you and learn from me, for I'm gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls." मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 29 वचन में लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। You know what pride is? क्या आप घमंड के बारे में जानते हैं? घमंड क्या होता है? Anybody who wants to define pride? कोई बताना चाहेगा हम में से कि घमंड किसको कहते हैं? क्या होता है घमंड? आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। घमंड क्या होता है? आप क्या सोचते हैं? What is pride? घमंड क्या है? कोई भी एक जन बता सकते हैं। अपने आप को बड़ा समझना। Say that in English, Saurabh. ब्रदर आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे? आपका आवाज ठीक से नहीं आया। ब्रदर आशीष थे क्या? जो से सारी ताकत से आपको बड़ा समझना। सेल्फ ग्लोरिफिकेशन ब्रदर इज सेइंग। Okay. Anybody else? What is pride? और कोई बता सकते हैं घमंड क्या होता है? सर जब हमें किसी भी बात में अहम शब्द आता है, मतलब जैसे ज्ञान की बात आएगी तो हम मुझे ऐसा पता है, मैं ये जानता हूँ, जब मैं शब्द आता है चाहे वो ज्ञान में हो चाहे पैसे में हो, किसी भी बात में, मतलब जहां पे अहम शब्द आता है कि मैं अपने आप में कुछ तो हूँ, मैं, तो वो मेरे हिसाब से लगता है कि घमंड है, जहाँ पे मतलब अपने आप को हम ईगो सेंट्रिक समझते हैं। Yes. According to brother, when a person puts his or her ego first and give preference to his or her ego, that is pride. It can be anything. It can be related to his wisdom or wealth or anything. Okay. There's a beautiful definition that one preacher called MacArthur gives to pride. He says, pride is self-worship. Does that appear here? I think it is not translated. Okay. It's not in the slide. Okay. Pride is self-worship. एक बहुत ही विख्यात लेखक मैक आर्थर नाम के लेखक ने इस प्रकार से घमंड की परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है, घमंड खुद की आराधना को या खुद की जब व्यक्ति अपने आप को ही पूजने लगता है तो उस स्थिति को घमंड कहते हैं। A proud person worships himself instead of God. एक घमंडी व्यक्ति परमेश्वर को पूजने के बजाय अपने आप की प्रशंसा और अपने आप की आराधना करने लगता है।
It is like throwing God out of the throne and trying to sit on God's throne. इसका मतलब कुछ इस प्रकार से होता है कि एक व्यक्ति परमेश्वर को उसके सिंहासन से हटाकर खुद उस सिंहासन में बैठने की कोशिश करता है। It is dangerous to fight God. और परमेश्वर से लड़ना क्या हम जानते हैं कितना खतरनाक है? Pride is dangerous. घमंड बहुत विनाशकारी है, बहुत खतरनाक है, Because it steals God's glory. क्योंकि घमंड जो है वो परमेश्वर की महिमा को चुराने की कोशिश करता है। How many of you think that you are humble? हम में से कितने लोग ये सोचते हैं कि मैं नम्र हूं या हम नम्र हैं? How many of you can say that you have overcome pride and have humbled yourself and you're now a humble person? हम में से कितने लोग ऐसा कह सकते हैं अपने विषय में कि मैंने हर प्रकार के घमंड पर जय प्राप्त किया है और अब मेरा जीवन जो है वो दीनता और नम्रता का जीवन है? Friends, we cannot say we are humble because when you say you're humble, you're not. You're proud of your humility. मेरे प्रियो, हम कभी भी ये नहीं बोल सकते हैं कि हम नम्र या दीन हैं, क्योंकि जब हम ये बोलना शुरू कर देते हैं कि मैं नम्र हूं, तो हम एक और नए प्रकार के घमंड को अपने जीवन में अपनाने लगते हैं। If you want to know if you have pride or not, check if you have anger and if you feel hurt when others correct you, if you're selfish, if you are shy, you are proud. अगर आपको अपने जीवन में ये देखना है कि आप घमंडी हैं कि नहीं, तो इन स्वभावों को देखें कि क्या मेरे अंदर में क्रोध है, क्या अगर कोई मुझे सुधारने की कोशिश करता है तो मुझे बुरा लग जाता है, क्या मैं स्वार्थी हूं या क्या मैं दूसरों की बातों को सुनकर शर्मसार हो जाता हूं? The Lord hates the proud, but gives grace to the humble. याद रखें, परमेश्वर घमंडी से घृणा करता है, लेकिन जो व्यक्ति नम्र होता है परमेश्वर उस पर अनुग्रह करता है। James 4 verse 10, humble yourself in the sight of the Lord and he will lift you up. याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 10वां वचन इस प्रकार से कहता है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। Verse 9, but he gives more grace. Therefore he says, God resists the proud but gives grace to the humble. 9वां वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, लेकिन जो व्यक्ति नम्र होता है उस पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। Pride is destructive. घमंड विनाशकारी होता है। How to overcome pride? तो फिर सवाल यह है कि हम कैसे घमंड पर जय प्राप्त कर सकें? How can we be humble like Jesus? और हम यीशु के समान किस प्रकार नम्र बन सकते हैं? 1 Corinthians 10:31. पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 31 वचन में, Whether you eat or drink, whatever you do, do everything for God's glory. यहां इस प्रकार से लिखा है, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। Whatever you do it for the glory of God. आप अपने जीवन में जो कुछ भी करें, याद रखें वो परमेश्वर की महिमा के लिए करें। A proud man wants to glorify himself, but if you want to overcome pride, focus on God. Turn the focus toward God and focus on glorifying Him. Do everything for His glory. एक घमंडी व्यक्ति हमेशा उसका ध्यान और उसका केंद्र खुद की प्रशंसा होती है, खुद की महिमा करने के लिए वो आगे
सोचता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में घमंड पर जय प्राप्त करें, तो आप अपने जीवन के केंद्र को परमेश्वर की ओर मोड़ दें। अपना जीवन का केंद्र खुद को ना बनाएं, लेकिन आप अपने जीवन से जो कुछ भी करें वो परमेश्वर की महिमा के लिए करें। Psalm 115, verse 1. भजन संगीता उसका 115 का 1। Not unto us, Lord, not unto us. Unto you be all glory for your grace and faithfulness. भजन 115 का 1। हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। So we have to redirect all praise that comes to us to God, to whom it belongs. तो जब आप अपने जीवन में देखें कि कोई आपको महिमा देने की कोशिश कर रहा है, तो उन सारी महिमा के बातों को हम परमेश्वर की ओर मोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर ही उस महिमा के योग्य है। If somebody comes and tells you that you are a beautiful singer, what are you supposed to say? तो अगर मान लीजिए कोई आपके पास आके कहता है कि आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? Have you listened to my CD? तो क्या आप उनसे ये पूछेंगे कि आपने मेरे एल्बम को सुना है क्या? That's not the way to respond. When आप somebody कभी भी इस appreciates प्रकार us, से उनको उत्तर ना दें। when somebody appreciates us, and when somebody attributes some ability to us, we need to say, it is all by grace. तो जब कभी कोई हमारी प्रशंसा करता है या हमारे गुणों की तारीफ करता है, तो आप हमेशा उनको बोलें कि ये परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। Paul was an exceptional servant of God. पौलुस परमेश्वर का एक असाधारण दास या सेवक रहा है। But you know what he said in 1 Corinthians 15:10? आपको मालूम है उसने पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 10वें वचन में क्या कहा? But by the grace of God, I am what I am, and by his grace toward me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. पहला कुरिन्थियों 15 का 10 में इस प्रकार से लिखा है, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। We are what we are by the grace of God. आज अगर हम कुछ भी हैं या जो भी हैं, वो केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। When people praise us, let us say, it is all by grace. जब लोग आपकी प्रशंसा करें, तो आप उनको स्मरण रखें और हमेशा उनको यही बोलें कि ये परमेश्वर की दया से हुआ है। Run away from popularity. और जब लोग आपको प्रसिद्धि दें, तो आप इस प्रकार की प्रसिद्धि को पाने से, लोकप्रियता को पाने से भागें। Proverbs 27:2. नीति वचन उसका 27 का दूसरा वचन। Let another man praise you and not your own mouth, a stranger and not your own lips. नीति वचन 27 का 2 में लिखा है, तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करें, परंतु तू आप न करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना न करना। We should not want to be popular. हम कभी भी लोकप्रियता के पीछे ना भागें। Somebody said that we should live a very simple and unpopular life, but after we die, the next generations should be blessed by our ministry and the books that we write and the ministry that we have established, so that when they look at our ministry and begin to appreciate, we will not be there to be proud. We will be there with God. किसी ने इस प्रकार से कहा है कि जब हम इस संसार में जीवन बिताते हैं,
तो बहुत ही साधा और बहुत ही साधारण जीवन बिताएं, और उसके बाद एक साधारण जीवन बिताने के बाद जब हमारी मृत्यु हो जाए, तो जो भी कार्य हम किए हैं, चाहे हमने पुस्तक लिखा हो, चाहे हमने जो भी सेवा किए हो, जब लोग हमारे उन कार्यों की प्रशंसा करें, तो फिर हम कभी भी, चूंकि हम मर चुके होंगे, तो फिर हमें घमंड करने का अवसर नहीं होगा। We're all human beings. When people appreciate us, when we grow in our recognition, we will fall into the danger of priding ourselves like Lucifer. याद रखें कि जब हम इस संसार में कुछ चीजों को अर्जित कर लेते हैं और लोग जब हमारी प्रशंसा करने लगते हैं, तो हम एक बहुत ही जोखिम भरे स्थान में होते हैं कि हम घमंड न कर बैठें, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से लूसीफर घमंड किया था। Let's not be proud. कभी भी अपने जीवन में घमंड को अवसर ना दें। Let's not make our ministries popular. कभी भी ये ना सोचे कि मैं कैसे अपनी सेवा को बहुत प्रसिद्ध बना लूं। Let us not call our ministries by our names. कभी भी आप अपनी सेवा को अपना नाम देने की कोशिश ना करें, So and so's international ministries. और इस प्रकार से फलाना फलाना नाम देकर आप सेवा को पहचान मत दें। We should run away from popularity. याद रखें, प्रसिद्ध होने या लोकप्रिय होने से अपने आप को बचाएं। As long as our Savior is glorified, our lives are worth living. याद रखें कि जब तक आपके जीवन से मसीह के नाम को महिमा मिलेगी, आपका जीना सार्थक है। Glory belongs to God, and God will not share his glory with anyone. क्योंकि महिमा केवल परमेश्वर की है और परमेश्वर अपनी महिमा को दूसरों के साथ में नहीं बांटेगा। We should live and die for the glory of God, our Savior. हमें जीना और मरना केवल एक ही उद्देश्य से है कि हम अपने उद्धारकर्ता की महिमा का कारण बने। Amen. आमीन। God will glorify us. He will honor us in his own time. और याद रखें कि परमेश्वर अपने समय में, अपने ठहराए हुए समय में हमें जरूर सम्मान करेगा और हमारी महिमा बढ़ाएगा। That's why in 1 Peter chapter 5, 1 Peter chapter 5, verse 6. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. पहला पतरस उसका 5वां अध्याय उसके 6वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। All of you, look at me. आप सब स्क्रीन पर पासवान को देखें। Honor is like our shadow. जो सम्मान है वो एक परछाई के समान होता है। If you want to catch hold of your shadow and run after it, the shadow also keeps running. अगर आप अपनी परछाई को पकड़ने की कोशिश करेंगे या उसके नजदीक आने की कोशिश करेंगे, उसके पीछे भागेंगे अपनी परछाई को पकड़ने के लिए, तो याद रखिएगा कि आपके साथ साथ परछाई भी आगे भागेगी। But you turn the other way around and say, I don't want to go after my shadow, and run away from it. What happens? You can't escape it. It will follow you. तो फिर मान लीजिए ठीक उसी प्रकार से आप अगर उल्टा करते हैं कि आप अपने आप को पलट लेते हैं और बोलते हैं कि अब मैं अपनी परछाई की तरफ नहीं भागूंगा, मैं विपरीत दिशा में जाऊंगा, तो क्या होगा? फिर वो परछाई जो है वो आपके पीछे आने लगेगी। Honor is like a shadow which flees from us when we follow it, but when we flee from it, it follows us. No, we can't escape it. तो आदर प्राप्त करना भी ठीक इसी प्रकार से है। अगर हम अपने प्रयास से उस आदर प्राप्त करने की ओर भागेंगे,
तो वो जो सम्मान है या महिमा है वो हमसे दूर जाएगा। लेकिन अगर हम अपने ध्यान को या अपने लक्ष्य को उसकी ओर से मोड़ लेंगे, हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए अपने लक्ष्य को बनाएंगे, तो याद रखिएगा वही आदर और सम्मान हमारे पीछे पीछे आएगा। The more you seek your own glory, the less you get. और जितना ज्यादा आप खुद की महिमा करने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका सम्मान कम होता जाएगा। The best way to gain honor, God-given honor, is to escape it, is to run away from it. और परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए सम्मान को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि खुद के सम्मान से या खुद से सम्मान प्राप्त करने की इस इच्छा से अपने आप को दूर रखें और इससे भागें। We need to humble ourselves deliberately, intentionally. और जानबूझकर और हर संभव प्रयास करते हुए हमें अपने आप को नम्र बनाने की आवश्यकता है। Luke 14:11. लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 7 से 11 वचन। For whoever exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Luke 14:11. लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 11 वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। We think we know this verse very well. हम सोचते हैं कि ये वचन तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, That's why we neglect it. और इसी कारण से शायद हम इस वचन को नजरअंदाज कर देते हैं। That is why we need to fight the problem of familiarity. इसीलिए हमें इस लोकप्रियता की जो समस्या है इसके साथ हमें लड़ना है। We should never think that we know it fully well. और कभी भी अपने आप में ये आत्मविश्वास ना आने दें कि अरे ये बातों को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। Let us see what this verse means. आइए हम देखें कि ये जो वचन लिखा है इसका वास्तविक अर्थ क्या है, इसका भेद क्या है। Everyone who exalts himself will be humbled, and everyone who who humbles himself will be exalted. और इसमें इस प्रकार से लिखा है, जो अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करेगा उसे नीचा किया जाएगा, और जो अपने आप को नीचा करेगा उसे ऊंचा किया जाएगा। The bottom line principle is everybody will be humbled by himself or by God. तो सिद्धांत जो यहाँ पे रचा जा रहा है वो ये है कि हर एक व्यक्ति को नम्रता के उस दायरे में लाया जाएगा, चाहे उसे खुद को नम्र करना पड़े या उसको परमेश्वर नम्र करे। एक व्यक्ति को नम्र होना ही सैद्धांतिक है। Everybody will be humbled by himself or by हर God. एक व्यक्ति नम्र किया जाएगा। Which is easier, to humble ourselves or to wait until God crushes us and humbles us? आप क्या सोचते हैं, आसान क्या है, अपने आप से खुद को नम्र कर लें या फिर इंतजार करें कि परमेश्वर हमें दबाकर या परमेश्वर हमें मरोड़कर नम्र करे? We will be humbled anyway. याद रखें, हमें नम्र होना ही पड़ेगा। It's always easier to humble ourselves. और ये बहुत आसान होगा, और समझदारी यही है कि हम खुद अपने आप को नम्र बना ले, दीन बना ले। To humble ourselves is not only easy, it's also beneficial, because God will lift us up. He will exalt us. और अपने आप को नम्र बनाना आसान ही नहीं है, इसके साथ साथ परमेश्वर की एक आशीष भी हमें इसके द्वारा मिलती है कि फिर परमेश्वर हमें बड़ा बनाता है और हमारी महिमा को बढ़ाता है। But if God humbles us, it's not only difficult, but it is also a loss, because there's nobody else who will exalt you. लेकिन अगर परमेश्वर हमें नम्र बनाता है तो याद रखिएगा ये आसान नहीं होगा, हमें अच्छा भी नहीं लगेगा, और हो सकता है कि जिस स्थान से हम थे उस स्थान से हमें एक अलग निचले स्थान में आना पड़ेगा। The humblest Christians are the noblest Christians. याद रखिएगा कि जो गुणकारी मसीह होते हैं उनका जो सर्वोत्तम चरित्र होता है वो नम्रता का चरित्र होता है। You know, proud people
don't pray because they depend on themselves and their strength. They think prayer is not so much needed. और आप ध्यान देंगे कि जो व्यक्ति घमंड से भरा हुआ होता है वो प्रार्थना नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक घमंडी व्यक्ति हमेशा अपने शक्ति पे, अपने बल पे, अपने ऐश्वर्य पे भरोसा करता है और फिर उसे प्रार्थना की जरूरत अपने जीवन में महसूस नहीं होती। Proud people don't correct themselves. When you correct them, they will say, mind your own business. Who are you to और जो tell me? घमंडी व्यक्ति होता है वो कभी भी अपने आप को नहीं सुधारता है, और जब दूसरा व्यक्ति उसको सुधारने की कोशिश करता है तो वो उनको बोलता है कि भाई साहब आप अपने काम से मतलब रखो। It is humility that makes us more prayerful and more teachable. और ये नम्र होना ही एकमात्र ऐसा स्वभाव है जो हमें प्रार्थना करना भी सिखाता है और हमें सीखने योग्य भी बनाता है। To be humble like Christ, you know what we are supposed to do? We are supposed to serve just like Christ. और मसीह के समान नम्र होने के लिए क्या आपको मालूम है हमें क्या करना होगा? जी हाँ, हमें जिस प्रकार मसीह ने सेवा किया था हमें भी उसी प्रकार से सेवा करना है। Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many. उस प्रकार से लिखा है, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे दे। You know what hinders us or what keeps us from serving others? आप जानते हैं या कभी आपने सोचा है कि दूसरों की सेवा करने में कौन सी बात बाधा बनती है? It is our pride. ये आपका घमंड है, ये हमारा घमंड है। Now look at me. अब आप पासवान की ओर देखें स्क्रीन पे। Pride is the enemy of serving. जो घमंड है वो सेवा का विरोधाभासी है, उसका शत्रु है। But serving is the remedy for pride. लेकिन जो सेवा भाव है या अपने आपको नम्र करना जो है वो इस घमंड से छुटकारा प्राप्त करने का इलाज है। If you start serving others selflessly, you don't have time to think about yourself and your recognition and your appearance. और जब आप अपने स्वार्थ को एक ओर कर देंगे और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा के लिए अपने जीवन को बिताएंगे, तब आपके पास ऐसा समय ही नहीं रहेगा और विचार भी नहीं आएगा कि आप खुद की लोकप्रियता या खुद के घमंड के विषय में सोचें। We have to imitate Christ in his humility. हमें जिस प्रकार मसीह नम्र था उसी प्रकार से अपने जीवन को भी नम्र बनाने की आवश्यकता है। Let's now look at Christ-like love. अब हम जो अगला विषय देखते हैं वो मसीह के समान प्रेम, इस विषय को देखेंगे। Ephesians 5:2. इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 2 वचन। And walk in love as Christ also has loved us and given himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling aroma. इफिसियों 5 उसका 2 में इस प्रकार से लिखा है, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। 1 John 3:16. पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन। But this we know, love, because he laid down his life for us, and we also ought to lay down our lives for our brethren. पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 वचन। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। John 13:34 and 35. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके 34 और 35 आयत। A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. By this, all will know that you are my disciples, if you have love for
one another. यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 का 34 और 35 में लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। Jesus gives us a new commandment here to यहाँ love. यीशु हमें एक नई आज्ञा देते हैं। Is it really new? Because in Leviticus 19:18, the commandment is, you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord. Leviticus 19:18. क्या वास्तविकता में ये एक नई आज्ञा है? क्योंकि अगर हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसके 18 वचन को निकालेंगे तो वहां पे लिखा है, पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूं। Now tell me, to love one another, is it a new commandment or an old commandment? अब आप मुझे ये बताइए कि एक दूसरे से प्रेम करना क्या ये एक नई आज्ञा है या ये आज्ञा पहले से दी हुई थी? Come on, tell me. बताइए, अपना माइक अनम्यूट करके बताइए कि अपने एक दूसरे से प्रेम करना ये एक नई आज्ञा है या ये पुराने नियम में भी दी हुई थी? Anybody? कोई भी? आप अपना माइक अनम्यूट करके इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं कि क्या एक दूसरे से प्रेम करना ये नए नियम की आज्ञा है या पुराने नियम में भी इसके विषय में आज्ञा दिया हुआ है? पुराने नियम में भी आज्ञा है सर। How dare It's you there in call the it Old old? Testament also. पुराने नियम में भी आज्ञा है सर। See, when Jesus calls it a new commandment, how dare we call it old commandment? तो फिर मेरा सवाल आपसे ये है कि जब यीशु बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, तो हम कौन होते हैं ये बोलने वाले कि नहीं पुराने नियम में भी ये आज्ञा है? You know what is new in this commandment? मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ध्यान दीजिए कि इस आज्ञा में नया क्या है। सर जैसा हेलो Seventh? yeah sir, actually Jesus saying that you have to love each other like me, means like me word is including here, that is a different thing. Wonderful. जैसे यीशु मसीह हमारे लिए he has give his life for us without any giving excuses, means he is facing a lot of opposition, but उसने मतलब हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर दे दिया। ये नया थिंग है, जैसे मैंने प्रेम किया है बिना प्रेम चाहे बिना, मीन्स विदाउट डिमांडिंग लव फ्रॉम अदर साइड, he has sacrificed herself, himself. That is a new thing. जैसे मैं Yeah, thank you, Seventh. Thank you, Seventh. In the old commandment, the commandment is love your neighbor just as you love yourself. पुराने नियम में ये आज्ञा दिया गया है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने ही समान प्रेम रखो। But in the new commandment that Jesus gives here in John 13, we should love others just as Christ loved us. यहाँ पे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13 के 34-35 में ये लिखा है कि हमें दूसरों से प्रेम करना है, ठीक उसी प्रकार का प्रेम जिस प्रकार का प्रेम मसीह ने हमसे किया है। Christ died for us, and this is the standard now. मसीह का प्रेम के विषय में हम देखते हैं कि मसीह हमारे लिए मर गया। So as we read in 1 John 3:16, we should be willing, if necessary, to die for our brothers. तो पहला यूहन्ना 3 के 16 में हमने इस प्रकार से पढ़ा कि हमें अपने भाइयों से प्रेम करना है और हो सकता है उसके लिए हमें अपने प्राण को भी देना पड़े। Just look at Ephesians 5:25 for a moment.
इफिसियों की पत्री 5:25 को आप एक पल के लिए निकालिए। Husbands, love your wives. हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, Just as Christ also loved the church and gave himself for her. जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। The Greek language here is very interesting. जहां पे जो यूनानी भाषा इस्तेमाल हुआ है वो बहुत ही रुचिकर है। There are three things that we can learn from Greek grammar here. तो जो यूनानी व्याकरण है उससे हम यहाँ पे 3 चीजें सीख सकते हैं। Present, active, imperative. वर्तमान के विषय में भी बता रहा है, सक्रियता के विषय में भी बता रहा है और अनिवार्यता के विषय में बता रहा है। It is in the present tense. यहाँ पे जो आज्ञा दी गई है वो वर्तमान काल के लिए दिया गया है। When does Jesus love us? यीशु ने हमसे कब प्रेम किया? All the time. ऑल द टाइम, हर समय प्रेम किया। So how should our love be? तो फिर हमारे जीवन में प्रेम किस प्रकार का होना चाहिए? It should be in the present tense. We should always keep loving. तो हमारे जीवन का प्रेम भी जो है वो वर्तमान काल के प्रेम के समान होना, वर्तमान काल का प्रेम होना चाहिए, जिसका अर्थ ये है कि हम हर समय अपने जीवन में प्रेम रखें। Our love for our fellow believers should not be talked about in the past tense. और हमारा जो अपने संगी विश्वासियों के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम भूतकाल के प्रेम के बारे में न बात करे, लेकिन वो वर्तमान काल का प्रेम होना चाहिए। Our love should be in action. हमारा प्रेम जो है वो हमारे कार्यों में दिखना चाहिए। It should be in not just in words but also in deeds. हमारा प्रेम शब्द मात्र में ना हो, लेकिन हमारा प्रेम कार्यों के द्वारा भी दिखना चाहिए। 1 John chapter 3 verse 18. पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसका 18 वचन। My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth. हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। Love is something we do, not something we feel. प्रेम एक ऐसी बात नहीं है जिसे हमेशा हमें महसूस करना चाहिए। प्रेम उस बात को दर्शाता है कि प्रेम हमें करना है। And now we need to learn that it is a commandment and not a suggestion. और एक नई चीज और एक और बात हमें सीखने की आवश्यकता है, वो ये है कि हमें प्रेम का स्वभाव रखना है। ये कोई सुझाव नहीं है, लेकिन ये प्रभु के द्वारा दिया गया आज्ञा है। In the Bible, there are no suggestions. When God speaks, he commands. याद रखिए, वचन में कोई सलाह या सुझाव नहीं है। वचन परमेश्वर की आज्ञाओं को, प्रतिज्ञाओं के विषय में बताता है। We need to love always in deeds, not just in words. हमें हर समय प्रेम करना है, और हमें केवल शब्द मात्र से नहीं लेकिन अपने कार्यों के द्वारा भी प्रेम करना आना चाहिए। Matthew chapter 22 verses 15 and 16. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसके 15 और 16 वचन। Christ is not a respecter of people. मसीह जो है वो लोगों को सम्मान करने वाला या लोगों को अच्छा अच्छा बोलने वाला व्यक्ति नहीं था। He preached the truth without compromise. और मसीह बिना किसी समझौते के हमेशा सत्य का प्रचार करते थे। My time is almost over, so let me try to say more things now. मेरा समय समाप्त होते जा रहा है, इसीलिए मैं कुछ जरूरी बातों को आपके सामने बताना चाहता हूं। Christ was holy. मसीह पवित्र था।
We should be holy too. और हमें भी इसीलिए पवित्र होना जरूरी है। 1 John 3:3. Brother Saurabh, you पहला please यूहन्ना read it in तीसरा Hindi. अध्याय उसका तीसरा वचन। Brother, can you read it? Or anyone can read it? 1 John 3:3. पहला यूहन्ना उसका 3 में इस प्रकार से लिखा है, और जो कोई उस यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। He was thankful. He was always praising God. And to imitate Christ is to praise God just like Jesus continuously. और हम मसीह के जीवन से देखते हैं कि मसीह हमेशा धन्यवादी था, वो हमेशा पिता का धन्यवाद करता था। तो अगर हम अपने जीवन में मसीह का अनुसरण करना चाहते हैं तो हमें भी अपने जीवन में धन्यवाद के स्वभाव को अपनाना होगा। Christ forgave sins. मसीह ने लोगों के पापों को क्षमा किया। If we can't forgive others, we are not like Christ. तो याद रखें कि अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं कर सकते तो हम मसीह की समानता में नहीं ढल पाएंगे। Christ was not of this world. मसीह इस संसार का नहीं था। We can't be readily accepted by the world. और याद रखिएगा कि संसार भी हमें कभी भी आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। Why did you read 15:19 of John, brother? हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 19वें वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 19 वचन। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। Yeah, we need to be patient just like Jesus was. और फिर हमें एक और बात देखना है कि जिस प्रकार मसीह धीरजवंत था उसी प्रकार से हमारे अंदर भी धीरज होना जरूरी है। 1 Peter 2. पहला पतरस की पत्री उसका दूसरा अध्याय 19, 20, 21. 19, 20 और 21 वचन। पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय उसका 19, 20 और 21 वचन। For this is commendable if because of conscience toward God one endures grief, suffering wrongfully. For what credit is it if when you are beaten for your faults, you take it patiently? But when you do good and suffer, if you take it patiently, this is commendable before God. For to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow his steps. क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। Hebrews 12, 2 and 3. इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय उसका 2 और 3 वचन। Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. For consider him who endured such hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your souls. इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका 2-3 वचन। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो।
the word patience makes sense only if you endure things done to you wrongfully. जब जो धैर्य शब्द है या जो धीरज शब्द है वो आपके जीवन में तभी पूरा होगा जब आपके जीवन में कोई अन्याय होता है और आप उसको सह लेते हैं. If you do something wrong and you get beaten, and if you say, I have patiently endured it, that's not patience because you deserve it. अगर आपने कुछ अन्याय किया है, कुछ गलत काम किया है और फिर उसके कारण से आपके ऊपर में ताड़ना आती है और फिर आप कहते हैं कि हाँ, इस ताड़ना को मैंने बड़े धीरज के साथ सहा है, तो इसमें कोई अच्छी बात नहीं है. क्यों? क्योंकि आपने जो किया है उसका फल प्राप्त किया है. But if you do something good and people misunderstand you and you face some troubles because of you're doing good and you still endure it patiently, that is patience. लेकिन इसके विपरीत अगर आप अपने जीवन से अच्छे कार्यों को करते हैं और उन अच्छे कार्यों के कारण से जब आपके जीवन में ताड़ना आती है, परेशानी आती है और उन परेशानियों को आप जब धीरज धरकर सह लेते हैं, तो ऐसे में हम देखते हैं कि हम धीरजवन बनते हैं. We behave in 4 different ways. हम अपने जीवन में 4 प्रकार के स्वभाव को रखते हैं. Evil for good, बुराई के लिए अच्छा होना, and that is devilish. अगर हम बुराई के लिए अच्छे होते हैं, बुराई करने के लिए अगर अग्रसर होते हैं या अच्छे होते हैं, तो ये शैतान की ओर से है. Evil for evil, and that is अगर हम beastly. बुराई के बदले बुराई करते हैं, That is beastly or तो animalistic. ये अमानवीय होता है, क्रूरता होती है. Think about dogs and snakes. They don't attack us on their own. Only when we try to do harm to them, they attack us in order to defend themselves. अब सोच के देखें कि जो कुत्ते होते हैं या सांप होता है, ये यूं ही हम पर आक्रमण नहीं करते हैं. अगर हम उनको छेड़ेंगे या उनको छेड़ने की कोशिश करते हैं, तब वो लोग फिर अपने आप को सुरक्षित करने के लिए हम पर आक्रमण करते हैं. So if you repay evil for evil, you're acting like an animal. तो जब आप बुराई के बदले बुराई करते हैं, तो आप अमानवीय हो जाते हैं और आपका स्वभाव एक जानवर जैसा हो जाता है. Good for good. अच्छे के लिए अच्छा होना, And that is human. और ये मानवीयता को या मानवता को दर्शाता है. And what about doing good even when you receive evil? और फिर जो अगली बात और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर आपके साथ बुराई होती है फिर भी आप अच्छा करते हैं, That तो is इसका क्या मतलब? that is divine. इसका मतलब ये है कि ये परमेश्वर की ओर से है और आप परमेश्वर के स्वभाव को प्रदर्शित करते हैं. What did Christ do from the cross? He prayed for those who were crucifying him. Father, forgive them, for they don't know who they are killing. They याद don't know करें what जब they're मसीह doing. क्रूस पर लटकाया गया था और जब वो क्रूस पर लटका हुआ था तो वो अपने पिता से इस प्रकार से प्रार्थना करता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं. My time's up. May the Lord bless these words to us. मेरा समय पूरा हो गया है और मैं यही चाहता हूं कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे. Tomorrow we are going to see Christ-like evangelism. और कल हम देखेंगे कि मसीह के समान एक सुसमाचार प्रचारक होना.